Ladies and gentlemen, a month ago, Vinesh Phogat was on the doorstep of history in Paris. She had wrestled her way to the finals, the first Indian woman to do so. Most believed she would win gold. But then fate intervened and the rest is history. But Vinesh refuses to be history. The 30-year-old from Haryana, as expected, has entered the political akhada ahead of the elections. The party she chose is the party she says stood by her. That is the Congress party. Yes, she will be fighting the election. It's from a place called Julana. Bajrang Punia, the other Olympian who had hit the streets protesting against BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh, allegedly involved in sexual exploitation of wrestlers, also joined the Congress party today. Now, it's still not clear whether he will be fighting the election or not, whether he will get a ticket or not. But fact is, ladies and gentlemen, the entry of these two wrestlers into the Congress party has ignited a fresh political bout. Before we get into that, first hear what the two wrestlers said post their joining. कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। Now, bringing Phogat and Punia is a big shot in the arm for the Congress as it looks at expanding its support base amongst women and the youth, apart from, of course, consolidating Jat votes. The Congress is struggling with tying up with the Aam Aadmi Party and it needs some strong punchers in its team. The BJP, on the other hand, faced with rebellions within its rank, is saying that this was expected. They say, we always knew and said that the protests by the wrestlers in Delhi against Brij Bhushan Sharan Singh were nothing but political. These two people came through a biggest movement in this country. Now somebody is criticizing, I saw that these are all the conspiracy, Congress conspiracy. So many athletes are in different parties. So many Olympians are also in different parties. Is that also a part of conspiracy? नहीं, अभी उनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं किए और राहुल गांधी जी इसीलिए दूसरी पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ बंदे दे दो ताकि हमारे 90 पूरे हो जाएं। तो अभी वो दूसरी पार्टियां सोच रही हैं कि हम दें ना दें। नहीं, कोई किसी में शामिल हो, हमें उस पर हमने क्या लेना है। अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई इशू नहीं। Ladies and gentlemen, here's the point. It's all very well that Mr. Punia and Ms. Phogat have joined the Congress party and the BJP will say what it wants to say. But is it fair to cast aspersions on a genuine protest against a man who allegedly for years on end sexually exploited
and assaulted young women wrestlers in this country. Is it fair to question that protest just because these two today have joined the Congress party? That's a question I'm putting to my guest this evening. Arun Yadav is spokesperson of the BJP. He's joining us on the broadcast. In fact, he's a spokesperson of the BJP from Haryana. I hope his line is clear this evening. Given the fact that it's raining very heavily in Gurgaon. Advocate APS Khadial is spokesperson of the Congress party with us on the broadcast. Mukulji is a former international wrestler joining us on the broadcast, and Rakesh Singh is the coach and the General Secretary of the Haryana Wrestling Association. Gentlemen, thank you very much. राकेश सिंह जी, ये कहना ठीक है क्या बीजेपी का जी कि देश की बेटी जो है कांग्रेस की बेटी हो गई है? कांग्रेस की बेटी क्या देश की बेटी नहीं हो सकती? सिर्फ बीजेपी की बेटी ही देश की बेटी हो जाएगी? सिर्फ बीजेपी का वोटर देश का वोटर है, कांग्रेस का वोटर देश का वोटर नहीं है? देश कहां से बीच में आ गया? ये तो जी अपनी सोच की बात है, जो भी बोलता है वो उससे पूछिए। मैं तो कहता हूँ ये देश की बेटी है और देश की बेटी थी और देश ने इसको सिर आंखों पे बिठाया है। आज वो कांग्रेस ज्वाइन करे तो इसमें किसी को क्या एतराज है? वो बड़े शौक से कांग्रेस को ज्वाइन करे। कांग्रेस ने ही उसको सपोर्ट किया था। पहले मैंने आपके चैनल पे पहले भी आके बात की थी आपसे, और मुझे पहले भी मालूम था कि ये एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कांग्रेस के द्वारा, जो जाटों को बदनाम करने का जो उन्होंने काम किया। आंदोलनकारी हमेशा राजनीति में आते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन अन्ना हजारे का केस किया तो सीएम बन गए। राकेश टिकैत ने किया तो उसको टिकट मिला, उसकी जमानत जब्त होगी। बबीता फोगाट और इस परिवार ने ये पहलवानों का जो आंदोलन किया तो इसमें आज ये टिकट लेने में कामयाब हो रहे हैं। अब रेल की नौकरी सरकार, रेल की सरकार के अंदर रहते हुए भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और रेल प्रशासन ने इन पे क्या एक्शन लिया? ये विनेश जो है हिंदुस्तान की शान है, हमने इसको सलूट किया, पूरे देश ने आंखों पे बिठाया। आज ये डिस्क्वालीफाई होके आई है, जीत के नहीं आई है, क्योंकि ये प्लेयर की गारंटी है, उसकी खुद की जिम्मेवारी है वजन बढ़ाना, वजन घटाना, मेंटेन रखना। इसको डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी हरियाणा सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार जो कोस रहे बीजेपी को, 4 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं बीजेपी सरकार से भी पूछना चाहता हूं, 4 करोड़ रुपए आपने किस मेडल के दिए हैं या इसको सम्मानित करने के लिए दिए हैं? और जो इतने पहलवान, जितने खिलाड़ी गए थे, जो बेचारे को मेडल लेके नहीं आया, उसको आपने क्या दिया? अमन सहरावत है, उसके बेचारे के माँ बाप नहीं है, देश का नाम रोशन किया, एकलौता ऐसा पहलवान है जो मेडल लेके आया है। आपने उसको तो सिर आंखों पे नहीं बिठाया, उसको तो एयरपोर्ट से कोई लेने नहीं गया। दीपेंद्र हुड्डा जी केवल इसी को क्यों लेने गए कि यही खिलाड़ी थी? लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को पहले ही पता था कि जाट को अगर पूरे को एक करना है तो ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा जैसे किसान आंदोलन हुआ, उसमें उनकी भूमिका थी और वो बैकफुट पे आए। उसके बाद में आज जो पहलवानों का है, भाई इसको इलेक्शन लड़ाओ, एमएलए बनाओ, मंत्री बनाओ, किसी को क्या इतराज है? लेकिन आप जी बोलिए। नहीं राकेश सिंह जी, और सब तो बहुत ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने विनेश का जो है सपोर्ट किया जी, तो गलत किया क्या? सपोर्ट तो बीजेपी को भी करना चाहिए था। अगर इस देश की रेसलर्स, महिला रेसलर्स सड़कों पे आ रही हैं, मेडलिस्ट हैं, राकेश जी सुन लीजिए, दूसरे की सुनने की भी क्षमता रखिए। देश की मेडलिस्ट हैं, ये देश के लिए नाम रोशन करती हैं बाहर। अगर वो सड़कों पे आ रही हैं, वो कह रही हैं कि भारतीय रेसलिंग में एक ऐसा इंसान है जो बीजेपी का एमपी है, इसने गंद फैला रखी है, ये यंग लड़कियों को हैरेस करता है, इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, और अगर कांग्रेस रेसलर्स को सपोर्ट करता है तो क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं तो कहती हूँ बीजेपी को भी सपोर्ट करना चाहिए था। बीजेपी तो नहीं किया ना, बीजेपी ने तो बिल्कुल उल्टा ही काम कर दिया। बीजेपी ने इनको कहां सपोर्ट नहीं किया? देखो, ये रेलवे में रहते हुए इन्होंने कानून का उल्लंघन किया, इन्होंने जो हमारा उद्घाटन हो रहा था ये उसकी तरफ दौड़े। जब ये कहा था ये आराम से आंदोलन करें, वहां बैठने पे कोई इतराज नहीं था। एफआईआर इनकी हुई, मुकदमा इनका दर्ज हो गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। फिर क्या हो गया? सिक्योरिटी इनको दे दी। उसके बावजूद इन्होंने राजनीति पहले ही करनी थी, राजनीति कांग्रेस ने इन्हें करवाई है। आज शर्माते हुए क्या करते? इन लोगों को क्या देना था? नहीं, पहलवान तो और भी है, साक्षी कहां गई? आज सभी को फिर टिकट देना चाहिए। आंदोलनकारी तो 3 ही लोग थे ना, तो तीनों को टिकट देना चाहिए। आज एक को क्यों दे रहे हैं? फिर कांग्रेस क्यों बैकफुट पे आ गई?
तीनों को मैं तो कहता हूँ, APS साक्षी को भी खडियाल, टिकट दो, बजरंग को भी टिकट दो, कांग्रेस, और विनेश को भी टिकट दो। APS खडियाल, वुड यू वांट टू कम तीनों इन को हियर? एमएलए बनाओ ना। ठीक If I है, may- लेकिन बैकफुट पे आज कांग्रेस नहीं, मेरे को तो बीजेपी लग रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है आप ही हार्ट ब्रोकन है थोड़ा, कि 4 करोड़ रुपए भी दिए विनेश को, इसकी सरकारी नौकरी भी नहीं ली, फिर भी इसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो थोड़ा बैकफुट पे तो मेरे को आप लग रहे हैं, लेकिन लेट APS खडियाल रिस्पॉन्ड। Beti Bachao, Beti Padhao is what the BJP says, but it's the Congress party that actually does it. And the Bharatiya Janata Party has a problem with that as well. My concern with the Bharatiya Janata Party is that the gentleman whoever is representing the Bharatiya Janata Party, he should have started with an apology. He should have started with condemning the senior leader of the Bharatiya Janata Party, Mr. Ranil Vij, for he said that देश की बेटी से ये कांग्रेस की बेटी बन गई है. My question to the Bharatiya Janata Party is, does her joining do away with all the things that she has done for the country, all the hard work, all the contributions that she has been doing for the country and will continue to? The BJP spokesperson, not just the BJP spokesperson, Mr. Modi, Mr. Amit Shah should have come forward and they should have condemned Mr. Anil Vij for this, rather expelled him. But the BJP has a policy of defending such people, and they wouldn't defend or they wouldn't bachao the beti, they would bachao people and leaders like Brij Bhushan, Kuldeep Sengar, Chinmayanand, Sandeep Singh, and they boast about bulldozer politics. कि हमने बलात्कारी के घर पे बुलडोजर चलाया तो क्या गलत किया, हमने असॉल्ट जिसने किया उसके घर पे चलाया तो क्या गलत किया. When would the Bharatiya Janata Party consider these leaders for that? Has the Bharatiya Janata Party ever considered that? Because the crime against women rate in India Arun Yadav, has respond rise to that. by 30%, in the Bharatiya Janata Party's regime. And every hour there Okay. are 51 cases. Let registered Arun Yadav of come crime in. against- Okay, let Arun Thank Yadav you come so in and much for- respond to what you are saying, spokesperson of the BJP. Yes, first of all, we do not do politics in the name of sports person. और जो भी कांग्रेस के स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे हैं, स्पोक्स पर्सन, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो हमें ज्ञान ना दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या होता है, क्योंकि वो हमने करके दिखाया है. और ब्रिज इनका तो ये मन करता है कि किसी के ऊपर एलिगेशन लग जाए तो आज ही उनको फांसी दे दी जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है. हमारे चीफ मिनिस्टर ने पॉलिटिक्स नहीं किया और विनेश फोगाट को देश की नहीं, हरियाणा की जो हमारी सबसे होनहार बेटी है, सबसे पहले आके, जबकि उनके पास कोई मेडल भी नहीं था, उनकी जो उन्होंने वीरता दिखाई और जो उन्होंने वहां पे पेरिस जो ओलंपिक्स के अंदर भारत का, देश का नाम रोशन किया, पॉलिटिक्स ना करते हुए उनको सबसे पहले सभी सरकारी सुविधाएं और मेडल के नाम पे पूरा का पूरा जो एक सिल्वर मेडलिस्ट को मिलना था वो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने दिया. कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो पॉलिटिक्स करते हैं स्पोर्ट्स को लेके. क्या योगेश्वर दत्त ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया? सब बनाया. तो देखो भाई, ये जो आप लोग हर चीज में पॉलिटिक्स को घुसेड़ते हो, वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए. वहां पे आपने रोड शो किया, दीपेंद्र हुड्डा रोड शो में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं. क्या और मेडलिस्ट के किसी रोड शो आपने किया? अमन शेरावत आए, उसके लिए आपने रोड शो किया? तो ये ज्ञान ना दें. आप सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि आपको एक दीपेंद्र हुड्डा, जो एक नकारा हमारे यहाँ के हरियाणा के एक नेता अपने आप को मानते हैं, उनको आपको WFI का आपको अध्यक्ष बनाना है, प्रेसिडेंट बनाना है, तो आप कुछ भी बोलेंगे क्या? और विनीश फोगाट देश की बेटी है, जो उसने अचीवमेंट किया उस पे हमें गर्व है. और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कोई पॉलिटिक्स ना करते हुए, जबकि दीपेंद्र हुड्डा अरुण पूरा जी। देश उसके नाम पे पॉलिटिक्स कर रहा था, उन्होंने सबसे पहले आगे आके इनाम की घोषणा की. अरुण वो जी। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अरुण जी आप बोल रहे हैं आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं. आप देखिए ना अनिल विज जी क्या बोल रहे हैं. In one statement he is telling us what exactly the BJP thinks, कि देश की बेटी No. अब कांग्रेस की बेटी बन गई है. Just because she has joined the Ma'am. Congress party, everything she has Ma'am, done on देखिए, national duty, देखिए मैम, every अब medal क्योंकि विनेश that जी she ने- has won for this country doesn't matter. no, it does matter. Everything she won, everything what Babita Fogat won for the country also matters. Whatever Yogeshwar Dutt won for the country also matters.
everything matters. But now, when she has already joined the politics, so now people might say many things. I am not accountable for it. It's politics now. Welcome many to things politics. तो अरुण जी बीजेपी ने बहुत नहीं वेलकम टू पॉलिटिक्स तो ठीक है, लेकिन ये जो मेनी थिंग्स की आप बात कर रहे हैं, दिस मेनी थिंग्स हैज बीन सेड फॉर विनेश फोगाट फॉर द लास्ट 2 years ever since she and others hit the streets in Delhi. क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में? मुकुल जी, would you want to come in here? Essentially the BJP spokesperson, मुकुल जी एक सेकंड रुक जाइए, मुकुल जी बीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया अब पॉलिटिक्स है, अब वो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, अब उन्हें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं, सबसे पहले तो जो नई पारी शुरू की है विनेश फोगाट ने और बजरंग जो पूनिया ने, मैं उनके साथ ही था आज। और क्या है कि पॉलिटिक्स में तो आना ही पड़ता है। पॉलिटिक्स जब होती है, किसके साथ पॉलिटिक्स नहीं होती? एक खिलाड़ी जो पहलवान है, जो ऊंचे ऊंचे पद पे पहलवान है, जो और भी पहलवान रहे हैं, तो वो भी राज्यसभा के मेंबर भी बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, खेल मंत्री भी बन सकते हैं। जब ऐसे राजनीति होने लग जाती है, ये नाम के नाम गिनवाने लग जाते हैं, हमने इतना नाम दिया, क्यों ना हम भी ऐसे ही जो सक्षम होए कि हम ऐसी गद्दी पे बैठे जहां हमें खिलाड़ियों ने इन नेता के पास ना जाना पड़े। हमारा ही खिलाड़ी कोई नेता हो, खेल मंत्री हो, वो अपने हिसाब से के नाम अपने रूल बना सके, वही फेडरेशन का अध्यक्ष हो। देखो पॉलिटिक्स की बात तो ये बताओ कि पॉलिटिक्स है कहाँ? नहीं। आज वो तीन पहलवान, दो पहलवान, एक खिलाड़ी संदीप सिंह, वो उन्होंने यूज करके उनकी टिकट तक भी काट दी गई। लेकिन रही बात दीपेंद्र हुड्डा की और भूपेंद्र हुड्डा की, अगर हरियाणा से सबसे ज्यादा मेडल हैं तो खेल नीति जो अच्छी बनाई उसके कारण है। और जो इनके रोड शो में जो उनके साथ गए हैं, तो जो कारनामा जो इन्होंने किया है, जो विनेश ने वहां पर तीन जो ऐसी खिलाड़ी जो हराई हैं, और जो उनके साथ 100 ग्राम वेट ज्यादा रह गया, और हमारी यहाँ की सरकार, सत्तारूढ़ सरकार, कोई भी वहां पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये गूंगे बहरे लोग हैं। जब इनको घसीटा जा रहा था वहां जंतर मंतर पे, जब कहाँ गई थी ये सरकार? जब अब ये क्या नाम पार्टी ज्वाइन करती तो कांग्रेस की बेटी होगी, ये देश की बेटी है और देश की बेटी रहेगी। और क्या है कि ये ठीक है, आगे आने वाले के लिए खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि एक खिलाड़ी हमारा विधानसभा में बैठे, और मैं तो चाहता हूँ संसद में बैठे। अभी उम्र ही क्या हुई है? आप मतलब हम किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, किसके सामने? अरुण यादव जी, ओके मुकुल जी, ठीक है, समझ गई। Arun Yadav ji, I mean, what did the BJP expect? Did the BJP really expect that these wrestlers would actually campaign for the BJP in the upcoming elections? Mane, look at how you have treated Brij Bhushan Sharan Singh. हाँ, नहीं एक मिनट. See how you have treated Brij Bhushan Sharan Singh. Was he punished? Was he punished by the party? Was he called out by the party? Did anyone in the party, starting from the Prime Minister, say anything about him or against him? Aspersions were cast on the motives of these women who were on the streets, but Brij Bhushan Sharan Singh, according to the BJP, is still park saaf. Pressure में उसको टिकट नहीं दिया तो क्या हुआ? बेटे को टिकट दे दिया. Look at Sandeep Singh, Haryana's former sports minister, again accused of sexual assault. उसको भी सबसे पहले बीजेपी ही प्रोटेक्ट करने आई. आप देखिए तो कर क्या रहे हैं. अगर गलत लोगों को और सेक्सुअल अब्यूजर्स को आप लोग प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई महिला आपके साथ क्यों खड़ी होगी? बताइए मैम। सबसे पहले तो वी आर नॉट हियर टू डिसाइड who should be punished or who should not be punished. It's the law who would be decide the same. संदीप सिंह पे केस चल रहा है, ब्रिजभूषण जी पे केस चल रहा है। हमारे माननीय उच्च न्यायालय तय करेंगे कि वो दोषी है। अगर वो फांसी के हकदार है तो उनको फांसी दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है अब कांग्रेस के साथ हरियाणा के अंदर, क्योंकि उनका कोई जनाधार तो है नहीं, 1-2-3 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है। तो हुड्डा जो गैंग है, जो भूपेंद्र हुड्डा बापू बेटा का जो गैंग है, वो चाहता है कि उनकी पीठ पे चढ़ के वो सत्ता तक पहुंच जाए, जबकि ऐसे होने वाला नहीं है। रही बात खिलाड़ियों की, ये जो लोग कॉमनवेल्थ के घोटाले के आरोपी हैं, ये आज हमें ना सिखाएं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं सिखाएं खिलाड़ियों की इज्जत कैसे करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है खिलाड़ियों के लिए, वो पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। आज खिलाड़ियों की जो इज्जत होती है,
जो आज हमारे हाँ। मेडल आ रहे हैं, चाहे वो पैरा ओलंपिक्स में आ रहे हो, चाहे ओलंपिक्स में आ रहे हो, ये देखिए पूरा का पूरा जो एक कांग्रेस का जो षड्यंत्र है, अरुण जी। सिर्फ एक चीज का षड्यंत्र है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को WFI का उनको प्रेसिडेंट बनाना है। उनका सिर्फ ये आंदोलन है। और हाँ। विनेश फोगाट जो भारत की बेटी है, देश की बेटी है, जिसको हर नागरिक पे गर्व है, हर नागरिक को जिन पे गर्व है, उनका पॉलिटिकली इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारे पहलवान भोले भी होते हैं, उनका हाँ। पॉलिटिकल इस्तेमाल करके हरियाणा के अंदर वो सत्ता में आने चाहते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब हाँ। सैनी जी ने उनके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। अरुण जी। उन्होंने तुरंत जैसे ही उनको सिल्वर अरुण मेडल जी, मिले नहीं मिले, अगर उन्होंने उनको बीजेपी के सारी मन वो चीजें में दी। अपने खिलाड़ियों के लिए इतनी इज्जत होती, अगर बीजेपी के मन में अपने खिलाड़ियों के लिए इतनी इज्जत होती, तो आज बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट नहीं मिला होता, वो कैसरगंज से MP नहीं होता। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं अरे बृजभूषण शरण सिंह और संदीप सिंह, न्यायालय करेगा अपना काम, कोर्ट करेगा अपना काम, अगर उनको फांसी देनी होगी देंगे। क्यों? आपका इतना सॉफ्ट रवैया कोलकाता के रेप केस को और मर्डर केस को तो लेके नहीं है। वहां तो आप चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए तो डबल स्टैंडर्ड तो दिखते हैं ना। एनीवे, आई लेट APS Khadial respond to what you're saying. APS Khadial, go ahead please. The Bharatiya Janata Party is proud of its leaders like Brij Bhushan, and we are proud of our leaders like Vinesh Phogat. The difference is crystal clear. The fact of the matter is that a recent ADR report has come, which says that it's the BJP's leaders that have the maximum number of crime against women cases pending against them. So we don't expect any better from the Bharatiya Janata Party. However, if they do not want to condemn Mr. Ranil Vij for what he said, at least condemn your IT cell, to which Vinesh Phogat has said that it tried to show her as a chali hui kartoos, as a used bullet. At least condemn your IT cell for doing that, for an achiever who has done so much for the country. We shouldn't have projected her in that light. And number two, calling for action against the BJP's leader Brij Bhushan. I think the Bharatiya Janata Party should now stop saying, it's he's innocent and everything, because charges have been framed against him by the court. And if you are saying that the court's framing of charges is not sufficient, I don't know what would be for the Bharatiya Janata Party. Until now, the BJP hasn't sacked him, expelled him. I mean, for once, until if you want to wait for the verdict, at least expel him. Do not protect him and defend him, because he again said that it's all been a conspiracy. I mean, the courts are framing charges against you. FIR is being registered against you, and despite that, you call all of it a conspiracy. This goes on to suggest how far and how much the Bharatiya Janata Party can do and go to protect their leaders who are guilty. Okay. So you're saying this is hypocrisy of the BJP. You are saying this is hypocrisy of the BJP, that on one hand, they're asking for Mamta Banerjee's resignation. On the other hand, they are not even expelling someone like a Brijbhushan Sharan Singh. Anyhow, the wrestlers have now entered a new akhada. It's a political bout that has just about begun. We'll see many ups and downs and interesting turns. We'll keep a watch out for that. Gentlemen, thank you very much for this conversation. Arun Yadav ji, thank you very much. Advocate APS Khadial, good to have you on the show. Mukul ji, thank you very much. And Rakesh ji, thank you very much for joining us.